ऐसे ऐसे हम सुबह भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावहै तमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। So article is worldly life and spiritual practice, सांसारिक जीवन और साधना. Okay. अंशुमान अमेरिका से आस्ती में जूनरो इंजेक्शन है. हाँ महाराज. हाँ भाई स्टार्ट करें महाराज. हाँ बस स्टार्ट करो. हाँ महाराज. Worldly duties and spiritual life. What is duty? We all busy ourselves with various kinds of activities we usually call duty, and very often we find that these activities bring only restlessness and misery. If this is true, there must be something wrong with our ordinary conception of duty. We do karma work, but ordinarily we do not know how to turn it into yoga, a spiritual technique, a means for divine realization. Let us look at what Swami Vivekananda taught about Karma Yoga. First, destroy the tendency to project the tentacle of selfishness. And when you have the power of checking it, hold it in and do not allow the mind to get into the ways of selfishness. This is called vairagya, dispassion, or non-attachment. Without non-attachment, there cannot be any kind of yoga. Non-attachment does not mean anything we may do in relation to our external body. It is in the mind. The binding link of I and mine is in the mind. If we have not this link with the body and with the things of the senses, we are non-attached wherever and whatever we may be. What then do we mean by duty? Of the two words, obligation and duty, obligation suggests an immediate constraint and a specific reference. Example, a man is under an obligation to support an aged widowed mother. Duty, on the other hand, usually implies less compulsion from immediate circumstances, but a greater impulsion on moral or ethical grounds. Whatever we call it, for us unillumined souls, duty implies a degree of restraint or compulsion. The case of illumined souls is different. Now, duty and selfishness. How pointedly does Swami Vivekananda tell us that our so-called sense of duty often becomes a disease? Duty becomes a disease with us. It drags us ever forward. It catches hold of us and makes our whole life miserable. It is the bane of human life. This duty, this idea of duty, is the midday summer sun which scorches the innermost soul of mankind. Look at those poor slaves to duty. Duty leaves them no time to say prayers, no time to bath. Duty is ever on them. They go out and work. Duty is on them. They come home and think of the work for the next day. Duty is on them. It is living a slave's life, at last dropping down in the street and dying in harness like a horse. This is duty as it is understood. The only true duty is to be unattached and to work as free beings, to give up all work unto God. We must gain a better understanding of where our duty lies and how to perform it. How often we find that before we have learned to solve our own problems, we work to help others, not out of love, but for the sake of self-gratification. Then there are another type of self-centered persons who seem to be over-anxious to make others happy and have no time for prayer or meditation. By covering selfishness with flowers, we cannot perform any real duty in a spirit of detachment and make it a part of an integrated spiritual life. Several phases of the ego. Human beings are strange combinations of various elements. We have dual, even multiple personalities. We are one self in business, another in church, still another at home. We hesitate to do in public what we gladly do in private life. Or many selves are sometimes quite incompatible with one another and so create endless confusion for us. We all must remember that if we separate private and public lives,
and follow opposite codes of conduct, we cannot help paying a very heavy penalty in the form of restlessness and double bondage. There are false duties as there are real duties. As Swami Vivekananda declares, to give an objective definition of duty is entirely impossible, yet there is duty from the subjective side. Any action that makes us go Godward is a good action and is our duty. Any action that makes us go downward is evil and is not our duty. Now, the concept of duty in Hinduism, the Varnashram Dharma. Hindu religion institutes 4 orders of society, each one with a definite set of duties: the spiritual man, the warrior, the trader, and the laborer. There are also special obligations for each of these according to their stages of growth, namely those of the student, the householder, the man retired from active life, and the monk. But in modern times, Western socio-political ideas and technology have changed all this. Now there is confusion of rights and duties, and an ever-increasing number of individuals who do not know where they belong to or what they should do. According to Hindu teaching, each man has his dharma or the righteousness that will put him on the path of God. All orders of society are indispensable parts of the whole, like the parts of the human body. If every individual in all stages of his life is integrated with the underlying cosmic rhythm, he will promote not only his own welfare, but also that of all around him. That is the highest duty for each one of us. Each one of us is an actor on the world stage and must learn to play his own part as well as he can. No two of us have the same part to play. There is sameness and equality at the spiritual plane, but infinite variety at all other planes. The Hindu view teaches each man to take things as they are, find out his own capacity, discover the truth of his own being, and then follow his law of growth, his Swadharma. He will then be clear about his duty to himself and to society. By fulfilling the duties of life in the proper way, every man may attain spiritual progress. There is no question of superiority or inferiority of work or of station in life. There are 2 paths before us. First, the path of legitimate worldly achievement and enjoyment. If properly regulated, this culminates naturally in the second path, namely the path of divine realization and freedom from all bondage. The path to avoid at all costs is that of adharma or unrighteousness. Now, duties of the householder. The Hindu scheme of social life, the householder is looked upon as the mainstay of society. In the Manusmriti, it is written, just as all living beings depend upon air for their existence, so also people belonging to other stages of life depend on the householder for their sustenance. According to the Hindu scriptures, the householder has 5 kinds of duties to discharge. These are worship of gods, study of the scriptures, helping fellow beings, offering oblation to ancestors, and protecting animals. And all these duties are to be performed not as a drudgery, but in a spirit of service, in a spirit of worship. Vedanta aims at integrating duty, service, and worship. If an activity cannot be linked with our spiritual life, it is not to be called duty. If you find that a particular work is dragging you away from God, do not do it. All kinds of work must take us nearer and nearer to God. A man's duty to himself. Over and above the 5 kinds of duties mentioned above, every man has a duty to himself, to his higher self. Since every soul is part of the universal soul, when a man discharges his duty to his higher self, he fulfills all other obligations. All our duties must have the unfoldment of the higher self as their integral aim. Then alone will life appear meaningful. We should first come to know the Lord ourselves and be able to solve our own problems and then help others.
There's another thing that should be considered as our duty. A little of the student's life has to be continued even after our school days. Many people lose their thinking habit when they leave school or grow older. And this is very bad indeed. There is nothing so dangerous as loose, hazy thinking. Having lost their thinking habit, they become more man of action and not man of thought. Both should be combined and harmonized. So even if we do not find time to read much, intense thinking must be made a matter of daily practice. There are so many dull moments in the course of the day, and these dull moments can very well be used for higher thinking. Our thoughts should never be allowed to drift aimlessly. We should make it a point to stress the unchanging principle in our life and not that which is continually changing and transforming itself in countless ways. And the highest duty of a man is to realize that principle here in this very life and then to help others in realizing it. There are the two things, quantity and quality. If you cannot increase the quantity, then improve the quality of your meditation, studies, etc. It is advisable for everybody not only to find time for his prayers, japa and meditation, but also to have some regular studies, some readings of selected passages from the Upanishads for at least 10 minutes after his spiritual practice. Inertia and dullness are two great enemies of spiritual life in all its phases. Another point is sense control. When the senses are controlled, one can easily remain on the thought plane. When distractions are removed, we'll be able to lead a more intensive and conscious life. Duty and attachment. We may do our work, one out of attachment to people and objects, second out of a sense of duty, or third out of devotion to the Supreme Spirit dwelling in all beings. Very often the first two get mixed up. Duty then becomes a justification for our attachments. This is why one thinker has put it, duty is the penalty we have to pay for our attachment. The perfect man has no duty and no attachment. His is only loving service done in perfect freedom without any sense of constraint or the thought of I and mine. Duty doesn't consist in attachment or clinging to this little world of our ego, to our body consciousness, to our mind, etc. True duty consists in the control of the senses, in selflessness, in loving service, in the purification and the right concentration of the mind, and in giving all our faculties a higher turn, making them fit instruments for the divine. Really speaking, duty is that which helps our spiritual progress. This should be taken as a general rule for everybody. The discharging of our various duties, fulfilling our bodily needs, or helping others, or serving the Lord, should enable us to attain spiritual progress. If we do not make spiritual progress, then there must be something wrong with our attitude towards God or of our sense of duty. There are people who cultivate an indifferent mood. They are indifferent to everything except perhaps their own personal affairs. And very often this indifference is the result of selfishness and laziness. True detachment, a true witness attitude makes you alert and imparts intensity to everything you set your mind on, work or meditation. Conflicts of duties. Very often we think we have got a certain duty to perform, but we find that it is beyond our grasp. Then take the help of a working duty, make that a stepping stone on the way to the goal. Very often our sense of duty is found to be in conflict with our sense of the pleasant, but we should learn to make our sense of duty coincide with our sense of pleasant. Then sometimes we complain that we are not able to get time for spiritual practice because of our preoccupation with the duties of life. If there is any real, sincere and deep-rooted hankering after the higher life, you will always find the necessary time for your spiritual practice and studies. Then someday we may have to go through our practices a little hurriedly. Whether hurriedly or leisurely, spiritual practice has to be done day by day with great steadiness, singleness of purpose, and regularity. Saying that there is absolutely no time for our spiritual practice and reading is not the truth. We should take out few minutes of our time from our activities of daily living, and then we can
make up some half to 1 hour for our daily practices also. And this is what is to be done under all circumstances, even if the mind is disturbed. For by serving myself first with a view to serving others, I can serve them with far greater efficiency and in a better spirit. Then there are some people who go on with their job even while they are engaged in some work. One may very well do one's work in a perfectly designed way, surrendering oneself wholly and unconditionally to the divine. And work must have a higher goal. In the lives of most people, you find it all aimless activity. What such people generally go on calling duty is, really speaking, nothing else but attachment. It is always easy to be active when following the line of attachment and clinging to wrong values. Duty as such should have no element of attachment or egotism in it, whether individual or collective. There are many people who pride themselves on being active, but that simply means they cannot sit still. Theirs is the random activity of a monkey that is intensely active, no doubt, but for what, nobody knows. Most people work only through attachment and clinging to their body for what Sri Ramakrishna used to call Kama Kanchan. If there comes a sense of real duty in a person, that will be something better, but even that is still a sort of constraint. Higher one will be loving service to the divine in all, in perfect self-surrender. The higher ideal, of course, always brings in its wake a certain amount of limitation. I cannot steal, I cannot tell lies, I cannot do anything immoral, I cannot act in an undignified or vulgar way. So here again, the scrupulous person is more limited than the unscrupulous one. When we make some compromise, we should say and know that we are weak, but we should never make that a justification for our weakness or even go so far as to call it a duty. The ideal should never be lowered. The question of duty is a very difficult one. So in the Bhagavad Gita, it is said that even the wise are confused as to what is duty and what is non-duty. As defined earlier, duty is that which helps us in our progress, and non-duty that which prevents or retards our progress. Helping others spiritually. After progressing in spiritual life, you should try to render spiritual service help to others. But do this only to the extent you have already got the power. Otherwise, pray to the Lord for those whom you want to help. If you pray intensely and sincerely, the Lord will do what is best for them. You cannot help others effectively if you cannot help yourself. So, gauge your own strength first, dispassionately, using discrimination. Then try to help others if an opportunity arises. Shiva drank the terrible poison so that the whole world might be saved. You must first attain the tremendous purity of Shiva if you want to remove the poison of the world. Better begin with small doses. The more you feel for others and wish to help them, and the more should you become unattached and move closer to your Ishta Devata, the Lord. Pray for yourselves and for others. Learn to be a real child of the Lord, no matter what happens, and pray to Him to give you unwavering faith in Him and in yourself. Make the Lord your all in all. Then nothing will affect you. You will be safe at all times, wherever you are, if you maintain contact with the divine consciousness in you. Be pure, one-pointed, determined, and you are sure to attain the goal. हो गया महाराज. Good. Very good, Maharaj. बंद है. महाराज दिख नहीं रहे हैं. महाराज आवाज आप नहीं आ रहा है. महाराज यू आर Unmute. म्यूटेड महाराज जी, आप माइक को ऑन कर दीजिए.
Now. अब ठीक है? Yes. हाँ जी Okay, Maharaj. ओके। ब्रह्मानंद जी ने यतीश्वरानंद जी के गुरु, उन्होंने इटर्नल कंपेनियन में कहा है, बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेंबर गॉड, ऑल्सो रिमेंबर एट द एंड ऑफ वर्क एंड ऑल्सो डू इट इन बिटवीन। तो हमने क्या किया था कि रायपुर डिस्पेंसरी में इसको हमने लिख के टेबल पे रख दिया था, और हमको ये सब करना चाहिए। खाना बनाने के पहले भगवान को याद कर लो, खाना जब बन जाए तब भगवान को याद कर लो, और एक एक रोटी जब बीच में बनती जावे तब भी भगवान को बीच बीच में याद करते रहो। बिना भगवान को याद किए बिना जो कर्म है वह निष्काम नहीं हो सकता, वो साधना में परिणित नहीं हो सकेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं बार बार सजेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को आप लोग बार बार पढ़िए। यानी हम कर्म के साथ में अनासक्ति होना चाहिए, भगवान की ओर इसको ले जाना चाहिए, और नहीं तो ये बंधन का कारण हो जाए। और यही दुर्भाग्य है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। संसार में रह रहे हैं, कर्म करना ही पड़ेगा, और इसलिए कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण योग, हमारे आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म योग। उसको अच्छी तरह समझ के करना चाहिए। तो और तो आर्टिकल बहुत बड़ा है, मैं समराइज नहीं करूंगा, अभी समरी हो गई है और काफी अच्छी समरी हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले इतु घोष, और आर्टिकल क्या था? यही था, वर्क एंड वर्शिप, यही कह सकते हैं हम, जी स्पिरिचुअल वर्क और उसको हाउ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इति घोष प्रश्न करो। जी प्रणाम महाराज। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन द फाइन डिमार्केशन बिटवीन नॉन अटैचमेंट एंड परफॉर्मिंग वेरी नेसेसरी ड्यूटीज विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। मैं ये इसके बारे में कुछ बोलने के पहले एक दो एग्जांपल्स देता हूं जो सारे क्वेश्चंस के लिए जनरल हैं। नॉन अटैचमेंट और ड्यूटी। एक छोटा बच्चा है और बच्चे को माँ ने कहा कि बेटा झाड़ू लगा दे, तो ठीक है, बच्चे ने झाड़ू लगा दिया। या फिर बच्चा देखता है माँ झाड़ू लगा रही है तो वो भी झाड़ू लगाता है। माँ ने कहा कि बेटा ये किताब तो पापा को दे आओ, तो पापा के पास दे के चला दे आया। छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कर लेता है। वो क्या अटैच होता है? क्या उसको कोई इच्छा है कि मेरी प्रशंसा होवे? वो समझता ही नहीं कि प्रशंसा क्या है। ठीक है ना? तो जैसे बच्चा काम करता है, माँ ने कहा मैंने कर दिया, माँ का काम कर दिया, और खेलता खेलता ही सारा काम कर दिया। वो घर को संभाल भी सकता है वो तो, अगर इसको ट्रेन कर दिया जाए। और वो सोचेगा कि नहीं कि ये कर्मयोग है या अटैचमेंट है या कर्म है, माँ ने कहा है मैं कर रहा हूँ, खत्म हुई बात। दूसरा दृष्टांत ले, एक सन्यासी का, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, उन्होंने उठा के यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया बनारस में, बनारस से उठा के चंडीगढ़ में पोस्टिंग कर दिया, कहीं से उठा के लुसाका में पोस्टिंग कर दिया। तो भाई वो लोग जैसा कर रहे हैं हमको चला रहे हैं। वो कोई नहीं, नाम यश भी नहीं मिलता कि आपने यहाँ पे काम अच्छा किया है और तो आपका नाम होगा, वो नाम यश भी नहीं है। ये क्या है? ये प्योरली निष्काम कर्म हुआ कि नहीं? एक एग्जांपल सुन लीजिए। जी यहाँ तक कि मैं वर्ल्डली लाइफ में आता हूँ, डॉक्टर भी कितने पेशेंट देख जाता है, एक के बाद एक, देख लिया। और यदि वो वॉलेंट्री डॉक्टर होगा, अगर ऑनरी सर्विस होगा,
तो उसने सर्विस कर लिया, खत्म हुई, पैसा भी नहीं मिलता, कोई बोलता भी नहीं कि अच्छा है काम किया है। अब वो जो पेशेंट है वो सदा याद रखता है डॉक्टर को, डॉक्टर पेशेंट को याद नहीं रखता। एक बार एक पेशेंट मैंने देखा, एक लड़की बच्ची थी कि 12-14 बरस की, 14-15 बरस की, मुझे देख के एकदम खुश हो गई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा क्यों भाई, कि आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, आप मेरे को इतना प्यार करते हो। अरे मैंने तो कभी उसको प्यार नहीं किया, मैं तो याद ही नहीं उसको, लेकिन हमने सहानुभूति से बातचीत की होगी, अच्छा किया होगा, उसको अच्छा लगा। तो तात्पर्य यह है कि हम पूरी एकाग्रता से कर्म कर सकते हैं और पूर्ण रूप से अनासक्त हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संसार में रहो, सारा काम करो। एक चौथा दृष्टांत है, एक है कि एक आदमी था और उसको बुढ़ापे में बच्चा हुआ, तो माता पिता बहुत उसके आसक्त हो गए और वो बड़ा हुआ, 12-14 साल का हुआ और अचानक मर गया। तो माँ तो बेचारी बिल्कुल भयानक अवस्था में, ये बच्चा जब अंतिम स्थिति में था तो पिताजी आए, पिता ने पूछा कि बेटा तू तो 10-15 साल मेरे साथ रहा, तुझे कोई कष्ट नहीं हुआ? क्योंकि पिताजी क्या बोल रहे हो, मेरे को अगर जन्म मिले तो आपका ही, आप ही पिता मुझे होंगे, इतने अच्छे तरह। पिता खुश हो गया। अब मरने के बाद में माँ तो रो रो के बेहाल हो गई, लेकिन उस पिता के शिकन पर, सिर के ऊपर वो एक रेखा भी नहीं आई। तो उसकी माँ कहती थी अपने पति के बारे में कि कितने निष्ठुर हैं, इतना सोने जैसा बच्चा चला गया, इनको आंसू भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान ने दिया और भगवान ने ले लिया, हमें क्यों आसक्त होना चाहिए। ये अनेक दृष्टांत है, ये बताते हैं कि हम संसार में रहकर कर्म करते हुए भी अनासक्त होकर रह सकते। तो ये मैंने एक जनरल वो कर दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन है, हाँ, ड्यूटी वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वो फाइन डिमार्केशन बिटवीन नॉन अटैचमेंट and performing very necessary duties without thinking about the result. बात No, the एक ही question हुई is, या why do you, no, the अलग? point is the question of result thinking does not arise. The question of thinking about does not. तुम खाना बनाओगे तो क्या हो, तो are you going go out, do you go on thinking that खाना बना, कैसा बना, क्या बना, कर कब होगा, क्या होगा, कोई खाएगा? हमने खाना, we just go on doing our duty. We just go on doing our और भी तो duty. काम होती है ना? ड्यूटी ऐसे ड्यूटी करते चले जाओ, उसमें क्या है? Well, the question of thinking about is not at all necessary. All duties are very necessary or not necessary does not matter. Duty is duty, go on doing it. And the question of thinking about the fruit does not arise. Second question. ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज सेम, ये लाइन पैसेज से है, देयर इज सेमनेस एंड इक्वालिटी एट द स्पिरिचुअल प्लेन. So does it mean that to gain something in this spirituality, the process is the same for all, or what? What does it mean? I could not understand. Question as a sameness in plane, in plan, everywhere, everything is done properly, is equal. Point is, अगर झाड़ू लगाते हो, पूरे कंसंट्रेशन से करते हो, तो पूजा करना एक के बराबर है। बाथरूम साफ करना पूरे कंसंट्रेशन से अगर करते हो तो इट इज एज गुड एज पूजा। हमने पूजा को सुपीरियर बना दिया है और कमरे को झाड़ू लगाना, स्वीपिंग करना, मोछना, उसको हमने कम कर दिया है। दिस इज नॉट, शुड नॉट बी डन। ऐसे ऐसे है ना,
नहीं उस Then passage all में these questions, everything is same, and they all work has to be considered same. एक कर्म कर्म है, पूजा कर्म सुपीरियर है और स्वीपिंग कर्म इंफीरियर है, that should not be. जी वो क्वेश्चन नहीं पैराग्राफ में था कि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सब तरह से मतलब दे आर नॉट इक्वल, but only there is sameness and equality at the spiritual plane. As a spiritual That plane, is yes, okay. No, that is what you are saying. So, you know, एक मजदूर में और मजदूर और एक फिलोसोफर में बहुत डिफरेंस है सर। एक राजा में और एक स्वीपर में बहुत डिफरेंस है जी। तो ये तो रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअली आत्मा सब में है, सब में वही आत्मा, एक ही परमात्मा सब में विद्यमान। जी जी समझ गए। हाँ। अच्छा, और थर्ड प्रश्न है, तुम उसी मात्रा में दूसरे की सहायता कर सकते हो जिस मात्रा में प्रभु से तुम्हारे इष्ट देवता के साथ उनका तादात्म्य है। So please explain this. This is a very difficult thing. स्वामी जी तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि तुम उसी मात्रा में एक व्यक्ति को, एक गरीब को सहायता कर सकते हो जिस मात्रा में वह उसका श्री रामकृष्ण से संबंध है। यही होगा ना? इसका हाँ, वो यही मीनिंग है उसका। वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई। I cannot say how it has been can be done. उसको फिर से सेंटेंस पढ़ो, लास्ट सेंटेंस जो पढ़ो फिर से। अच्छा, तुम उसी मात्रा में दूसरे की सहायता कर सकते हो जिस मात्रा में प्रभु से तुम्हारे इष्ट देवता के साथ उनका तादात्म्य है। उनका तादात्म्य है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। लगता है कि मेरा पर प्रभु के साथ जितना तादात्म्य होगा उतनी मात्रा में ही मैं दूसरे की सेवा कर सकता हूँ, उनका तादात्म्य हो या ना हो। लेकिन अच्छा। मेरा तादात्म्य भगवान के साथ में जितना होगा उतनी मात्रा में मैं ठीक सेवा कर सकता हूँ। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो जो बाहरी बात है, आदमी आया, मैंने खाना दे दिया, किसी भी आदमी ने खाना दे दिया, भूखा हो गया, उसका पेट भर गया तो सेवा हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर वे आध्यात्मिक पॉइंट जोड़ रहे हैं कि जिस मात्रा में मैं भगवान के साथ संयुक्त हूँ उस मात्रा में ही ठीक सेवा होगी, क्योंकि मैं भी भगवान और जो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान। इस दृष्टि से इसको लिया जा सकता। जी ठीक। महाराज जी ये समझ में नहीं आया, महाराज जी ये समझ में नहीं आया कि कर्तव्य जब एक काम करते हैं, एक के लिए हमने सेवा की और वो वही सेवा कही जाएगी कि जो हम ईश्वर के साथ करते, इसका मीनिंग ये हुआ क्या? नहीं, अगर मैं ईश्वर को उसमें देखूं तो वो ईश्वर की सेवा हो गई जी। यानी मैं अगर उसमें देखूंगा ईश्वर को, भगवान उसमें जिसकी सेवा की है जी। तो मैं उसको, ये हमेशा यही तो बोलते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। शिव की सेवा करो लेकिन ये सोचो कि वो शिव है, भगवान है। ये बार बार कहते हैं, तब फिर ये आपकी सेवा जो है ये सेवा नहीं रहेगी, पूजा हो जाएगी। ये हुआ सब्जेक्टिव पार्ट, यानी मेरा व्यक्तिगत पार्ट। जहां तक ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उसको आप कुछ भी समझो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको खाना तो मिल गया, उसका पेट भर गया, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ। लेकिन जहां तक सब्जेक्टिव पॉइंट है, जिस मात्रा में मैं उसमें भगवान देखूंगा उस मात्रा में मेरा लाभ। नहीं, जो हिंदी का शब्द है उस तादात्म्य में यानी उसका मीनिंग क्या होगा? उस तादात्म्य है ना, क्या है? हाँ, तादात्म्य उसके साथ जो एकता है जी, उसके साथ में भगवान के साथ जो तादात्म्य है, मेरा भगवान के साथ में जो एकत्व का बोध है, उसी मात्रा में मेरे को लाभ होगा। तादात्म्य का अर्थ यही है, मीनिंग। इंग्लिश का पढ़ो तो
रीता, निवेदिता, ये तो इंग्लिश का पढ़ो। पेज नंबर कौन सा है सर? लास्ट सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ो। कहाँ पर पेज नंबर? To the extent one is in tune with God, to that extent नहीं, तुम्हारा पेज नंबर सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन देखो ना। Not able to get। ये तो ये पेज नंबर क्या है? 87 last page में। 87. Yes. As you grow purer and spiritually stronger, you will be able to absorb bigger doses without much danger to yourself. No. If you pray intensely and sincerely, the Lord will do what is best for them. You can help others to the extent they are in tune with the Lord, your own Ishta Devata. in tune को कहा है तादात्म्य। जी, तो वहां तो ये कहा है कि आपके इष्ट देवता के साथ वो जितना ट्यून होंगे, इष्ट देवता के आपके इष्ट देवता के साथ उनका जितना तादात्म्य होगा उतनी सेवा होगी। यहाँ एक्चुअली होना चाहिए कि आप जिस मात्रा में अपने इष्ट देवता के साथ में आपका तादात्म्य होगा, how much you are in tune with God, to that extent you will be able to help। तो इसके दो भाग हुए, जैसे मैंने कहा इन ट्यून यानी तादात्म्य, इन ट्यून जी, दो भाग हो गए। एक तो है कि सब्जेक्टिव पार्ट, टू द एक्सटेंट मैं जिस मात्रा में भगवान के साथ संयुक्त हूँ उस मात्रा में मेरा लाभ होगा। जी, और वो लोग अगर सही ट्यून न भी हो लेकिन उनको खाना मिल गया, पेट भर गया, वो ऑब्जेक्टिव लाभ हुआ उनको। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सब्जेक्टिव लाभ जो मैंने को हुआ वो है जिस मात्रा में मैं भगवान के साथ में मेरा तादात्म्य होगा। अब तो क्लियर है? यस सर। जी महाराज, जी जी क्लियर। चलिए दिलीप भाई आपके क्वेश्चन है। महाराज हिंदी पार्ट मिल गया उसमें है मैंने ओके वी हैव डिस्कस्ड, हो गया, स्टॉप इट। अच्छा ठीक है ठीक है। Maharaj, it is quite clear, Maharaj. Okay, the okay. two aspects you explained, the two aspects are very clear. जी महाराज, मैं बोलूं क्या सवाल? हाँ तुम्हारा। जी महाराज, my first question is, the only true duty is to be unattached and to work as free beings, to give up all work unto God. Now my question is, when we do service, automatically name and fame comes, even thinking that we are doing for God or God is getting done by us. This name and fame given by the society encourages us to do more and more work, and ultimately we are attached towards the work. Should we stop doing work? The problem is we do not know at what stage we should stop the duties. The question of stopping does not arise. It is not written everywhere, nowhere it is said. Today you are getting name and fame, tomorrow you may get abusers. जी, तुम्हारी गाली देवे या तुमको प्रशंसा करे, तुमको क्या लेना देना उससे? कर्म क्यों बंद करेंगे? कर्म बंद करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? कहीं सब जगह पढ़ के देख लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कर्म वही बंद होता है जब आपका पतन होगा, मन में अगर बुरे विचार आएंगे, अपनी ध्यान जब नहीं हो रहा है तब होगा। लेकिन अगर नाम यश हो रहा है तो मिलने दो ना, उससे क्या लेने देना पड़ेगा? जी, वो लोग गाली भी देंगे तुमको, कुछ लोग गाली देंगे, कुछ नाम यश देंगे। स्वामी विवेकानंद अपने पोयम में कहते हैं सन्यासी के बारे में कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो कोई तुमको गाली देगा। तो संसार में गाली देने वाले भी हैं, अच्छे आदमी जो खूब सेवा करते हैं उसके लिए भी कहते हैं कि अरे ये नाम यश के लिए कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपकी निंदा भी करेंगे और ऐसे भी लोग हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं। इससे क्या लेना देना उसका? यू विल नॉट बी। अगर एक अवस्था आएगी व्हेन यू लिव के बाद, देखो पेज 86 में जी, लास्ट बट वन पैराग्राफ में है, वहां लिखा हुआ है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब इतने शुद्ध हो जाओगे, तुम इतने पवित्र हो जाओगे कि तुम कर्म नहीं कर सकोगे। यस, जी जी, समझे?
एक जी। स्थिति ऐसी अपने आप आएगी कि कर्म अपने आप छूट जाएंगे, खुद तुमको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट जी। So the question does not arise when should I leave. If my name and fame comes, you don't leave it. राइट जी वो महाराज। वर्ग जो है, एक स्थिति ऐसी आएगी, अपने शुद्ध हो जाओगे, कर्म कर ही नहीं सकोगे, सब जगह भगवान देख रहे हो, मैं किसकी तो सेवा करूं, सब छूट जाएगा। राइट तो स्वामी जी। जी यही बोलते हैं कि you will not be able to do automatically. यस The question of does not arise when should you leave. Okay. राइट जी महाराज। Now Second. my second question. One starts helping other without expecting any return from him in his need for number of days. Then automatically the attachment now pops in. How can we stop such attachment? If not possible detachment, then should we stop work to help the downtrodden people of the society? हाँ, इसे ऐसा होता है, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। निष्काम कर्म करते हैं लेकिन कर्म में फंस जाते हैं। जी अरे एक रोगी नारायण की सेवा करना प्रारंभ किया तो ज्यादा आने लग गए, तो एक हॉस्पिटल बना दिया, जी और 25 बेड का हॉस्पिटल, फिर 50 बेड का हॉस्पिटल, वो बढ़ता चला गया और तुम उस कर्म में फंस गए। स्वामी शुभानंद जी, जी जिन्होंने ये रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वाराणसी का शुरू किया, जी है, वो खुद स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, और श्री रामकृष्ण और ठाकुर का काम शुरू किया, सेवा का काम किया, और आगे जाके उसी सेवा के काम में वे फंस गए बहुत ज्यादा, दिन रात उसी का चिंतन करने लग गए। तब ब्रह्मानंद जी जब यहाँ पे आए, उन्होंने इनको देखा कि अरे बाबा ये तो और फंस गया है, उसको रिटायर कर दिया, जाओ तपस्या के लिए जाओ। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जब आप सेवा करें तो उसके बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। यस 1-2 महीने के लिए छुट्टी में चले गए, एकांतवास किया, तपस्या किया, ध्यान जप किया, और मन को पुनः शुद्ध किया। ये कर्म करने से काफी समस्याएं आती हैं, अच्छा काम करते हुए भी, और इसलिए सुबह शाम ध्यान जप होना चाहिए, संडे के दिन ज्यादा होना चाहिए, और बीच बीच में 5-7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए एकांत में चले जाना चाहिए। इसके बिना ये आपने जिस प्रकार की बात कही, ये आपको प्रॉब्लम होने ही वाला। ये निष्काम कर्म भी बंधन डालता है, याद रखो। निष्काम कर्म खुद के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म अपने आप में एक बंधन डालता है, इसलिए निर्जनवास, साधु संग, साधना बहुत ही इम्पोर्टेंट। याद Yes. Maharaj, now my third question. In Bhagavad Gita, it is said that even the wise are confused as to what is duty and what is non-duty. So should we stop doing duties? Now my question is, this article, worldly duties and spiritual life, as I see, is complete Bhagavad Gita. What was in Arjun's mind and how Lord Krishna solved all the questions? Arjun, being a good student, he understood everything, what Sri Krishna said, what is right and what is not, what is good for him and what is not. And accordingly, he acted. But here we are not Arjun, a good student. Does it mean that we should not do worldly duties till we attain the highest spiritual life? Even work to be surrendered to God. Do work for God till we attain the stage we should stop worldly duties. वही मैंने कहा, ये डिस्कस एक्चुअली हो चुका है। यानी बीच बीच में आपको निर्जनवास करना चाहिए, साधु सेवा करना चाहिए, ध्यान जप करना चाहिए, बिना उसके ये प्रॉब्लम अवश्य होगी। आपने क्वेश्चन जो रेज किया है बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। इतना आप कर्म में करोगे तो फंसते चले जाओगे। में आपको बीच बीच में इनको बंद करके एकांत में जाना चाहिए, साधुओं के पास जाना चाहिए। अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण ने उसको टाइट कर दिया, और अर्जुन उत्तम अधिकारी था, उसने समझ भी लिया। लेकिन हम न तो उत्तम अधिकारी है, न हमारे पास श्री कृष्ण है। ऐसे में क्या करोगे? प्रार्थना करनी पड़ेगी, सुबह शाम प्रार्थना करेगी। जो अभी मैंने कहा ना, संडे के दिन पूरा एकांत ध्यान जप करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, साधु संग करोगे,
स्वाध्याय करोगे, इटर्नल कंपेनियन पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग इत्यादि पढ़ोगे, जी और मन को सारा टाइट करने का प्रयत्न करोगे। There is no other way, नहीं तो संसार में आप फंसते चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जी महाराज, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिस्टर्ब माइंड हाउ प्रेयर कैन बी डन? डिस्टर्ब माइंड में ही तो प्रेयर होती है। कैसे होगी? जब दिमाग का बच्चा बीमार होता है, सीरियस होता है, तब तो माँ ज्यादा प्रार्थना करती है, प्रभु बचाओ इसको। व्याकुलता होगी, डिस्टर्ब माइंड से व्याकुलता होगी, तभी हम प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रार्थना के लिए कोई माइंड शांति होना चाहिए। भगवान के पास चले जाओ, समझो उनका चित्र है, उनके सामने जाके करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा मन शांत करो। व्याकुल होके प्रार्थना करना है, आंख खोल के भगवान का स्मरण करना है, आंख खोल के भगवान का नाम लेना है। आंख बंद करने पे तो मन भागेगा इधर उधर। बिल्कुल। तो वो ऐसे में प्रार्थना के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और भी तुम्हारा एक कोई प्रश्न और था क्या? महाराज, एक प्रश्न और है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी? इसको ज्यादा अच्छी तरह बताया गया है, कर्तव्य एंड दायित्व एंड बंधन। फर्दर नाउ माय दिस क्वेश्चन इज, फर्दर इन द लाइट ऑफ अबव थ्री, where we the Sunday talks sadhak stands in relation with Swami Brahmasanand ji? नहीं, वैसा है कि मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आप ब्रह्मेशानंद और वी मत लाइए। छोड़ ऑब्लिगेशन और कर्तव्य भी मत लाइए। हम एक तीसरी चीज बोलते हैं, और तीसरी चीज है लव, प्रेम। जहाँ प्रेम से प्रेरित होकर उस काम किया जाता है, वो कर्तव्य और दायित्व से ऊपर है। माँ बच्चे की सेवा कर रही है, तो क्या वो कर्तव्य है उसका? क्या वो दायित्व है? ये तो कर्तव्य और दायित्व बहुत छोटी चीजें हैं। इस आर्टिकल में प्रेम की बात नहीं की गई, लेकिन माँ कहती है मैं कहाँ प्रेम की बात, मेरे को तो समझ में, मैं तो कर्तव्य क्या, मेरे को अच्छा लगता है बच्चे की सेवा करना, तो उसमें कोई दायित्व का प्रश्न कहाँ आता है और कर्तव्य का प्रश्न कहाँ आता है? तो प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर करना। तो जहाँ कहीं भी कर्म होवे, आप प्रेम से प्रेरित होकर करो, एवरीथिंग विल बी। तो महाराज, ये प्रेम के बंधन में नहीं आ जाएंगे क्या हम? हाँ? फिर ये बंधन नहीं होगा प्रेम का? नहीं, प्रेम जो है वो कर्तव्य से ऊपर है जी। प्रेम जो है हाँ। वो कर्तव्य से भी ऊपर है। अगर स्वामी कंप्लीट वर्क तो स्वामी विवेकानंद करो, स्वामी जी बार बार प्रेम से कहते हैं, गरीब को आप प्यार को देते हो तो वो आप उसको प्रेम से दो। और ये प्रेम जो है ना, वो उसके बाद में वो क्या है कि एक्चुअली साधना में भगवान, उसको प्रेम को भगवान के साथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन प्रेम हमेशा कर्तव्य और दायित्व से ऊपर। ये कर्तव्य और दायित्व करते करते हमारा मन चित्त शुद्ध होगा और हमें जीवन में प्रेम उदित होगा। ये ऐसा हो सकता है, अभी नहीं है प्रेम। नहीं, पर प्रेम बांधता नहीं है क्या? प्रेम बांधता नहीं है क्या? अगर प्रेम अन्यथा नहीं, पूर्ण रूप से निस्वार्थ प्रेम जो है बंधन का कारण नहीं। जहां कहीं भी स्वार्थ है वहां ही बंधन है। ये सारे आर्टिकल का यही तो सार है ना जी। जहाँ पे अनासक्ति की बात बार बार कही है, वहां सारी जगह यही बात है कि जहां पर स्वार्थ है वहां पर ही आसक्ति है और बंधन।
नहीं महाराज, समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये है मेरा कि अनासक्ति तो है, लेकिन यदि अनासक्ति रहेगी तो फिर प्रेम वहां पे नहीं रहेगा, और जहाँ प्रेम रहेगा तो वो बंधन होता है। आज हम बन गए हैं 8:45 बजे से प्रेम के कारण, पर बंधन है कि 8:45 बजे अब बैठ जाओ टेबल पे, कभी भी महाराज आएंगे, दर्शन होंगे और क्लास चलेगी। तो इसको क्या करेंगे? या बंधन में बंधे हुए हैं हम प्रेम के, not duty. It is not a duty, but still we are bounded by the affection. तो ऐसे बंधन में क्या नुकसान है भाई? नहीं, मैं यही पूछता हूँ इसको। नुकसान तो बिल्कुल नहीं, ये तो और बनना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। चलो आगे चलो, आगे चलोगे, प्रश्न नहीं हो गए बस तुम्हारे महाराज, प्रश्न? बस प्रणाम। अच्छा सपना, सपना। प्रणाम महाराज। हाँ भाई बोलो। Yes, through practice we can develop. वहाँ से how to practice it. Should I read the lines? Yes, please. Through practice we can develop such intensive thinking that 2 hours ordinary thinking may be done in half an hour. Okay. There are two things, quantity and quality. If you cannot increase the quantity, then improve the quality of your meditation studies, etc. So the question is how to practice it. You know, practice we understand. ध्यान जब की प्रैक्टिस करते हैं ना सुबह शाम, तो ये तो प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस का कंडीशन है दीर्घ कार्य निरंतर करना है, सत्कार के स्वाद देवा पातंजल योग सूत्र में है। प्रतिदिन उसी समय करना है, बिना ब्रेक के करना है, और धीरे धीरे करते हुए हैबिट हो जाती है। यतीश्वरानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि डेवलप ए प्रैक्टिस हैबिट ऑफ डीप थिंकिंग। थिंकिंग से रिलेटेड है ना ये क्वेश्चन? Yes, yes. We don't have a practice of deep thinking. So he says that every day you do a little of deep thinking. Achha. Reading, translation, writing अच्छा। article. इससे क्या होता है? मन concentrate होता है, मन higher thinking करने लग जाता है। तो डीप थिंकिंग की भी हैबिट की जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट इज डीप थिंकिंग की। ठीक है महाराज। जैसे आप लोग क्वेश्चंस है रिपीटेडली आस्क, क्वेश्चंस पूछना है तो यू हैव टू रीड आधे घंटे 1 घंटा उसको आर्टिकल पढ़ना पड़ा, टू गेट इनटू अ हैबिट। And kindly suggest the selected passages from the Upanishads which we should read every day. Maharaj ने यहाँ कहा कि even यतीश्वरानंद जी ने ही he has brought out one book, Universal Prayers. अच्छा। Have you seen that book? Yes, yes. Universal Prayers. तो उसके अंदर उपनिषद से, गीता से, पुराणों से उन्होंने सिलेक्ट को कही है, उसको पढ़ो। ठीक है, ठीक है। I have that. Maharaj, second question is true attachment. True detachment, a true witness attitude makes you alert and imparts intensity to everything you set your mind on, work or meditation. How to understand the difference between the indifference and detachment, and how to judge myself whether I am indifferent to others or detached. No. You see, a detachment does not mean indifference at all. How to judge दूसरे व्यक्ति myself? की सेवा करोगे तो पूरे मन से करोगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बाद में भी अन्य somewhere it is there, even feelings are there. कोई गरीब व्यक्ति आया तो you felt it. Yes. तो दुखी है तो उसको भूख लगी है तो you actually felt. अखंडानंद जी जो है ना, तो उसको भूख, लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो खुद भी नहीं खाते थे। गरीब जब तक वो खाना नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे खाऊं?
It's not attachment, Okay. but absolutely no indifference. यानी इमोशन भी रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रिटर्न नहीं है. एक्सपेक्टेशन नहीं होगा. So there should not be any indifference at all. ओके ओके ओके. यानी एक आदमी पूरे मन से ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर है वो पूरे मन से करेगा, उसमें इंडिफरेंस कहीं भी नहीं आता है. डिटैचमेंट का अर्थ नहीं है ये. उसको पैसा नहीं मिलेगा, फ्री कर रहा है, तो उसमें अटैचमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट कर दिया, पूरा ठीक हो गया, पेशेंट चला गया, बट ही हैज नो इंडिफरेंस एंड नो अटैचमेंट. एक्सपेक्टेशन won't be there, shouldn't be there. नो एक्सपेक्टेशन. यहाँ तक कि नहीं कि भाई मेरे को कोई प्रशंसा करे या करे, कुछ नहीं. एक्सपेक्टेशन है तो अटैचमेंट आ जाए. He is doing it for his good. Okay, but patient अगर मर जाता है तो क्या करेगा वो? That is not in our his hand. गीता में कहते हैं भगवान सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो. जय पराजय, लाभ अलाभ, सुख दुख, इसको समान करके पूरी तरह काम करो, अपना कर्तव्य पूरा करो. ये हुआ नॉन अटैचमेंट. पूरा अटैचमेंट एट द सेम टाइम फुल डिटैचमेंट. दिस इज स्वामी विवेकानंद's मैसेज. पूरे अटैचमेंट से करो, लेकिन यदि जिस मोमेंट छोड़ना हो 1 मिनट में छोड़ के चलेगा. टोटल डिटैचमेंट होना चाहिए. महाराज और एक क्वेश्चन है इसमें, जो कई लोग हैं जो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं. दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट, बट दे समटाइम्स दे हैव एंजाइटी आल्सो. एंग्जाइटी तो भाई एक डॉक्टर को भी होगी. अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है तो वो एंग्शियस होता है. अच्छा. हाँ, तो एंग्जाइटी इज नॉट ए टेस्ट ऑफ अटैचमेंट. अच्छा. Okay, okay. And third question is, how can a person be idle in spite of having real yearning of God? That is Idle? Yeah, in page 83. Page 83, it's written that if there is any real, sincere and deep-rooted hankering after the higher life, you will always find the necessary time for your spiritual practice and studies. And if you do not do so, in spite of feeling a real yearning, you will end by being completely upset. So, यानी सब कुछ है, yet you are not doing. यानी तुमने संसार से मन हट गया है और भगवान में नहीं लगाओगे तो क्या होगा? अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि यर्निंग है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं. कुछ नहीं कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, भगवान का भजन भी नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं यर्निंग के कारण. That will not do. Okay. Pranam Maharaj. Okay. सतीश वेग. महाराज जी, इस पॉइंट पे जो डॉक्टर्स वाला पॉइंट आया, गुरपिंदर बोल रही हूँ, जो आपने बताया कि डॉक्टर्स का, अभी सपना जी जो पूछ रहे थे. बोलो बोलो. ये क्या हुआ? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज. हाँ, तो मेरा था कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, अभी तक भी मैं ओपनली इसीलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाती कि जब कोई पेशेंट आता है तो हमें फील करना पड़ता है उसका. लेकिन उसके बाद क्या होता था कि पेशेंट चला जाता था. इवन आप यकीन मानो कि अगर कोई डायरिया की या इवन अस्थमा की, तो कुछ दिन के लिए वो प्रॉब्लम टोटली मेरे में आ जाती थी. और मेरी फैमिली भी पता होता था कि अगर पेशेंट उठ के गया है और मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो समझ जाते थे कि जरूर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का पेशेंट आया होगा, इसको वो चीज हो गई. तो इस फियर में आके मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, मतलब जो भी होता था, अगर किसी को सच में कोई बहुत पेन में है तो उसकी अगर मैंने मेडिसिन दे दी उसको और उससे बात कर ली, अगर आंख से आंख मिला के, मैं यूजुअली देखती नहीं जल्दी करके अब, तो वो प्रॉब्लम मेरे में आ जाती है फॉर फ्यू डेज. अरे भाई, ये तो हम सब नहीं समझ सकते. ये तो तुम्हारी बहुत उच्च अवस्था है. ये तो ठाकुर जी सी अवस्था है. ये तो ठाकुर दूसरे का सोचते थे, दूसरे का दोष अपने में ले लेते थे. यह सब मेरे को नहीं समझ.
अस्थमा की मुझे इसीलिए आई, एक फ्रेंड की सिस्टर थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, वो कहते दिल्ली तक ट्रीटमेंट करवाया, तब मैं पटियाला में थी मैरिज से पहले। मैंने उसको बुलाया, जब उसने सारी बात बताई, इतनी क्वालिफाइड लड़की थी, उसके बाद उसको वो तो ठीक हो गई मेडिसिन से। और मुझे ये 2002 की बात है, फर्स्ट टाइम लाइफ में अस्थमा का इतना सीवियर अटैक आया, और हर साल उसी सीजन में मुझे होती है प्रॉब्लम। तो तुमने क्या उसका बीमारी खुद ले ली? मुझे तब तक इन चीजों का पता नहीं था। उसकी मैरिज हो गई, वो ठीक हो गई थी, उसकी मैरिज भी हुई एमबीबीएस डॉक्टर के साथ, इतनी अच्छी, जिसकी के वो तो मैरिज ठीक हो है, ही नहीं रही मतलब थी। बाबा ये तो बहुत ऊंची स्थिति है भाई, हम ये नहीं जानते। ओके, ये मैं इस डर की वजह से ओपन ओपीडी नहीं करती कभी भी। महाराज जी साइकोसोमैटिक लगता है ना? हाँ। चलो सतीश। थैंक यू। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। बोलो। हाँ बोलो, प्रश्न। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, it is hard to give up, overcome self-interest and attachment. We are condemned to perform multifarious works out of self-interest, which we call duty. How can we overcome our self-love and perform duties selflessly without attachment? विचार के द्वारा, by practice, by विचार, you have to think about it. भाई, this is what Gita भगवान has said. भगवान ने repeatedly told Arjuna, सुखे दुखे समय कृत्या लाभा लाभा जया जयो। यहाँ तक कि जय पराजय लाभ अलाभ इसको सबको छोड़ना पड़ेगा, ये सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये बार बार अपने दिमाग पे बिठाना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे सफरिंग होगी। मेरा कभी सेल्फ इंटरेस्ट कभी प्योर से फुलफिल होगा, कभी नहीं होगा, और आगे पीछे मैं बॉन्डेज में पड़ जाऊंगा। ये अपने मन को बार बार समझाइए, नहीं तो मेरे को सफरिंग होगा। ये बार बार चढ़ के उसको ऊपर उठ जाओ। जी महाराज, राइट महाराज। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, हमें काम करते हुए एंजाइटी तो रहती है कि काम सक्सेसफुल होना चाहिए, ये हमें रहती है। इज इट आल्सो अटैचमेंट ऑफ वी आर वर्किंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस? ऐसा है कि जैसे मैंने एग्जांपल ये डॉक्टर का है या माँ का है, तो माँ पूरी सेवा कर रही है, उसको थोड़ी चिंता तो रहती है कि बच्चा ठीक नहीं हुआ है, लिटिल एंजाइटी तो करीब रहती है, सब अच्छे काम में। लेकिन वो ऐसा है कि आपको ये मेरा वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, फाइनल एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी नहीं होना चाहिए। एंजाइटी रिगार्डिंग द फ्रूट नहीं होना चाहिए। वैसे छोटी मोटी एंजाइटी तो होती है हमेशा। जी महाराज, जी। क्वेश्चन नंबर 3 महाराज, man's duty to himself, that it is written there, all our duties must have the unfoldment of the higher self as their integral aim. Then alone will life appear meaningful. How can there be unfoldment of the higher self in our day-to-day work? How to radiate truth, develop real purity and non-attachment, realizing that we are instruments in the hands of law. ऐसा है कि वो सो चुका है, मां मनुस्मरे युद्ध च। मुझे भगवान अर्जुन को गीता में क्लियरली कहते हैं कि सदा मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। और फिर मैंने अभी ये कहा कि बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेंबर गॉड, इन द एंड यू रिमेंबर द गॉड, आल्सो इन बिटवीन यू रिमेंबर द गॉड। दीज आर द बेसिक थिंग्स, जिसके बिना कोई अटैचमेंट या प्यूरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप नहीं होगी। तो उसके साथ में साधना भी करना चाहिए, ध्यान जप करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तब उसके बाद देन ओनली यू विल बी, बाय प्रैक्टिस ओनली यू विल डेवलप दिस। जी महाराज, जी महाराज। Question number 4. How can intensive thinking help us in our spiritual pursuit? Intensive thinking. ऐसा है कि आप ध्यान जप की बात कही ना तुमने, उसमें आफ्टर दैट यू आल्सो टॉल्ड अबाउट मेडिटेशन। Japa and dhyana is preferable to intensive thinking, or do you mean to say japa dhyana is so easy? No, it is. आधे घंटे बैठते हैं और 5 मिनट भी जब ध्यान नहीं होता है। It is not easy. No, then because our mind is low. Yeah, my mind has to be kept at a higher level. इसलिए जैसे ही आपने आर्टिकल के लिए इतना डीप थिंकिंग करना पड़ता है, एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, हमको करना पड़ता है, क्लास लेना पड़ती है,
आर्टिकल लिखना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है, ये इनके द्वारा माइंड हायर लेवल में रहता है. That mind will be fit for meditation and japa. Our mind is not even fit for meditation and japa. जी महाराज, जी So महाराज, this is a very very important thing. यतीश्वरन जी बहुत important बात कहते हैं. जी जी ब्रह्मानंद जी उनके गुरु, उन्होंने ये कहा था यतीश्वरानंद जी को कि राइट 1 आर्टिकल एवरी वीक. जी, समझ लो. समझे महाराज. उन्होंने कहा था कि मैं इमीडिएटली नहीं कर पाया, कुछ साल बाद मैं कर पाया था. हर वीक, एवरी वीक ही यूज्ड टू राइट आर्टिकल. Right. And no other person than Brahmanand ji who never wrote. But he is suggesting write a 1 article every week. So intellectual level has to be very high. Then only we will be able to understand and appreciate japa and meditation. This is a very important point. जी महाराज. और ये आगे ये है ना कि before meditation and end of meditation reading some scriptural text. वो जो मैंने कहा यूनिवर्सल प्रेयर में है, उसमें से 2-4 पैसेज पढ़ लिए, गीता से पढ़ लिए, और इन द एंड में भी उसको पढ़. It means remaining on higher thought plane is also a good sign of spiritual progress. Yes, yes. ऐसा है कि हायर थिंकिंग यदि आपका होता है मतलब यू आर इम्प्रूविंग. जी महाराज, जी महाराज. This is my question. Question number 6. In page number 83, it is written, take the help of working duty and make that a stepping stone on the way to goal. What is that working duty? मैं समझ नहीं इसको. वर्किंग ड्यूटी क्या है? इसमें है पेज नंबर 83 में. Yes. Take the help of a working duty and make that a stepping stone on the way to the goal. जैसे वर्किंग ड्यूटी है तो श्राइन को क्लीन करना. अच्छा, पूजा जो है वो इसके हायर लेवल हो गई. तो वर्किंग ड्यूटी है क्लीनिंग द रूम, वॉशिंग द रूम, क्लोथ फॉर पूजा. समझे ना? लो ड्यूटी, मैनुअल ड्यूटी है. हायर लोअर ड्यूटीज जो है वो भी दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू हायर ड्यूटी. इसको निग्लेक्ट नहीं करना है. महाराज लास्ट क्वेश्चन है तो एडिटर बने हैं तो एडिटर उसके पहले आर्टिकल लिखना. हमारी ड्यूटी क्या है? एडिटर वर्क जो अचानक तो नहीं मिल जाता. आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखते लिखते फाइनली यू गेट द हायर ड्यूटी ऑफ बिकमिंग एन एडिटर. दैट्स इट. जी महाराज. लास्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 85. Higher ideal decreases your activities instead of increasing them, because you cannot freely and thoughtlessly go and doing all kinds of activities. तो उसमें एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती हैं. जब हम अपना हायर आइडियल रखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई गलत काम ना हो जाए हमसे, हम दूसरों से ज्यादा मिक्सअप ना हो. तो ये हमारी मिक्सअप जो है सोसाइटी में हमारी जो कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है. नहीं, ये अभी दूसरा पॉइंट ये बाद में भी आया है. किसी ने पूछा है कि नहीं पूछा है. ऐसा है ऐसा है कि अभी कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. और गीता में क्या कहा है? गीता में तो ये कहा गया है, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी. साधना के जो अंग है, प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शन है, एकांत में रहेंगे और संसार के लोगों से नहीं मिलेंगे. तो ये जो है इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डलनेस. अब अंदर कमरे में रहो और सोए रहो, दैट इज नॉट द पॉइंट. इंटेंस एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, कंसंट्रेशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वर्क होते रहना चाहिए और संसार से दूर रहना है. दैट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डलनेस. जी महाराज. क्वेश्चन यही था. क्वेश्चन तुम्हारा यही था क्वेश्चन ना? हाँ, यही था महाराज. It is a stepping stone towards yoga, internal yoga. महाराज एक क्वेश्चन मेरा और है. महाराज हम जो उसमें है कि हम जो है
जो है कर्म जो है परमात्मा करता है, हम नहीं करते। जो भाव रहता है कि हम कर्म, अब करता नहीं है, कर्तापन का भाव, वो कैसे होता है महाराज? जैसे हम जब हमने कर्म किए हैं तो उसका जो कर्म थ्योरी है, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल भी हमने भोगा है। सपोज जो हमने मीठा खाया है तो डायबिटीज हुई है, मैरिज की है तो बंधन में पड़े हैं, नौकरी की है तो बॉस के गुलाम हुए हैं। तो हमने अपने जीवन में देखा है कि हमारे कर्म जो है उसका फल हमने देखा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि फल जो परमात्मा ही करता है, हम कर्तापन का भाव कैसे जा सकता है? नहीं, अगर वो करना पड़े तो फिर ये भी सोचो कि जो मेरे को जो पनिशमेंट मिल रहा है वो भी भगवान दे रहे हैं। जी, तो उसका वर्स मीनिंग यही रहा कि हम करता भी हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो पहले भी कर्म भगवान ने करवाए थे और कर्म का फल भी भगवान दे रहे हैं। सब बातें भगवान को सोचो। जो परम भक्त है भगवान के, वो कभी कर्म को बात नहीं करते हैं। परम भक्त, दोनों चीजों को मिक्स मत करो। जब कर्म की बात करते हो तो फिर कर्म अपना ही हुआ, भगवान का नहीं हुआ। नहीं। और उसमें मैंने मिर्ची खाई है तो पेट में जलन होगी, ये तो इसमें भगवान को क्यों लाते? मुझे ना, मिर्ची खाई है तो पेट में जलन होगी, भगवान को क्यों लाते? और अगर भगवान को लाना है तो फिर सब चीजों में भगवान को, सेल्फ सरेंडर। उसके बाद में निर्णय भी हमारे जीवन में नहीं होगा, भगवान ही सब करेंगे। कंप्लीट सेल्फ सरेंडर होगी। शरणागति जो है बहुत भयानक, बहुत डिफिकल्ट चीज है। यानी गिरीश चंद्र घोष तो गिलास ही पानी का नहीं पी सकते थे, भगवान की आज्ञा नहीं मैं कैसे। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, तो उन्होंने वो आदमी को बोला था कि जरा इस तरफ से गाड़ी ले जाओ। गाड़ी ले जाने लगे तो गिर गया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी गलती हो गई जो मैंने आपके आज्ञा के विरुद्ध गया। ये बहुत ऊंची बात, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ऊंची बात है भाई। हम अपने कर्म के द्वारा फसल करते हैं, किसी न किसी ने भगवान को लाना है, इसलिए होता है। जी महाराज। अच्छा, रीता विश्वाल। Yes, Swamiji. My first question is how to distinguish between real duties and false duties. What do you mean by false duty? False duty means, some duty which you do, but you do grudgingly. That is how I think. You do. I got grudgingly you do a particular duty. Is that a false duty? No, you have to clean the room and you are doing it grudgingly. Grudgingly, you don't want to do cleaning the room and you are doing grudgingly. Is it, that means it is a false duty? No. Not that. Suppose somebody asks you to you do this for me and I don't want to do it. No, that is duty no one wants to do. No one wants to do the duty. All duties are unpleasant. All duties are unpleasant. So then how to make it pleasant? No, that is a different thing. To consider that it is going to take me to God. It is God's order. Yes. If you can consider that, but we don't love even God. God is wanting me. God wants me to do, and yet you are grudging. Yes. So duties are always unpleasant, Baba, and yet you have to do. The point is that duties will produce Chitta Shuddhi. Yes. But we also don't want Chitta Shuddhi. We want to remain where we are. We talk of big things, but we don't want to move at all. Yes, Swamiji. Yes. That is the point. Yes, Swamiji. अच्छा, बताए. Second question. महाराज मैं एक क्वेश्चन पूछूं रिलेटिंग इसके रिलेटिंग. क्या है उन्होंने कहा है और रियल फॉल्स ड्यूटी के लिए. You see, real duty is. Yes, Swamiji. तो ड्यूटी भगवान की तरफ ले जाए. जो भगवान की तरफ ले जाए वो रियल ड्यूटी है. यतीश्वरानंद जी ने लिखा. और जो भगवान से दूर करे वो फॉल्स ड्यूटी.
फॉल्स ड्यूटी है, यहाँ रियल है। जो भगवान से दूर रखेगा फॉल्स ड्यूटी है। फिर स्टेशन ऑफ लाइफ के बात है। हाँ, यस यस स्वामी जी, स्टेशन ऑफ लाइफ। सेकंड है स्टेशन ऑफ लाइफ। तो वो स्टेशन ऑफ लाइफ में क्या है, एक आदमी लेडी है तो लेडी है, और मैन और वुमेन ये स्टेशन ऑफ लाइफ हो गए। गृहस्थ वानप्रस्थ ये स्टेशन ऑफ लाइफ हो गए। फिर एक वैष्णव है, एक ब्राह्मण है। These are the stations of life which decide the स्वधर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज यस यस, मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं महाराज? सतीश बोल रहा हूँ। हाँ महाराज, हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जैसे जिसका ना हमें लाभ होता है ना किसी को लाभ होता है, लेकिन हम करते हैं, करना पड़ता है। बहुत सारी ड्यूटीज है, उसको क्या कहेंगे? कोई फॉल्स ड्यूटीज या रियल ड्यूटीज जो हम नहीं बहुत सारी अनप्रोडक्टिव करने पड़ते हैं। अधिकांश ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटीज तो रूटीनली हमको करना पड़ती है। एक रूटीनली हमको करना पड़ती है ड्यूटी। जैसे सोशल है, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जिसका ना किसी ना ही इज इंटरेस्टेड ना आई एम इंटरेस्टेड, देन वी आर डूइंग इट। अरे हम आरती में अगर जाके नहीं बैठे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम कमरे में बैठ के हमारा ध्यान जप कर सकते हैं, और हमारे आरती में नहीं जाने से वहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी हम जाते हैं। सो देयर आर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका न खुद को लाभ होता है, न दूसरों को लाभ होता है, लेकिन फिर भी एक रूटीन होते हैं, वो करना चाहिए। क्यों? उसमें नुकसान कुछ नहीं। नहीं तो एक नहीं करोगे तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे लाभ नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ते चले जाओ, सब काम छोड़ते चले जाओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। चलो दूसरा। नेक्स्ट, व्हाट इज स्वधर्म? हाउ डू आई नो आई एम डूइंग? व्हाट इज स्वधर्म? आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू। हाँ, स्वधर्म है स्टेशन ऑफ लाइफ। यू आर ए लेडी, तो तुम्हारा स्वधर्म और एक जेंट का सद्धर्म फर्क पड़ेगा। यस 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 यस, गृहस्थ और सन्यासी का स्वधर्म हो जाएगा। हाँ, यू आर ए वैष्णव, यू आर ए पर्टिकुलर जाति है, तो अकॉर्डिंगली योर स्वधर्म विल डिपेंड। करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, Swami Yatishwarananda says, page 75, second paragraph, if every individual in all stages of his life is integrated with the underlying cosmic rhythm, he will promote not only his own welfare, but also that of all around him. That is the highest duty for each one of us. The cosmic being is often represented with multiple hands and feet to remind us of the. So in this context, my question is how to integrate when there is only a faint understanding of cosmic rhythm. You say you have some idea about God, isn't it? Yes, Swamiji. Yes, certainly. But just hold on to that idea. You don't worry about the cosmic being. Okay. Or constantly think about God. उठते बैठते चलते फिरते हमेशा भगवान का नाम रहो, भगवान का be, that is how you will become in tune with cosmic being. Okay. Yes, Swamiji. Thank you, sir. And the fourth question, fourth and five both are same, both you have answered. My fourth question, how to practice and to be aware that lower self does not eclipse the higher self. जब ध्यान करते जाओ, your lower self will become less and higher self will improve. Yes, Swamiji. Yes, I have found that. Then the fifth question is actual confusion between attachment and duty. That often distracts and worries. How not to get confused? अरे भाई ऐसा है कि हमारी एक और ड्यूटी है,
कौन सी ड्यूटी है? Are you doing the duty for God or not? निरंतर भगवान का स्मरण करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Thank you, Swami. This is it. मजूमदार सुबीर प्रणाम महाराज जी। बोलो। महाराज जी, first question from page 78, last paragraph. Swami Yatishwarananda says that we can help others silently by radiating the truth without their being aware of it. How does this silent help happen? आपके जीवन से सच You see, these people, these great people, they will constantly go on meditating, and they will also, suppose Yatishwaranji wants to help me as his disciple, he will constantly pray to Thakur about me. Right. So it has been silently done with intensity. It has been done constantly thinking of Thakur. It has been done. So I will get help. जी जी। So this silent prayer, it must be done. जी। And everyone, Yatishwarananji also used to say, Brahmananji used to say, pray for others. Always pray for others. You must pray for others. That is the silent way. And to the extent we become superior spirituality, to that extent we are improving the society, our atmosphere. In the article itself is there that people by their evil thinking, they spoil the atmosphere, isn't it? It is written repeatedly. एक paragraph है कि they are not careful about what they are thinking. Your mind is restless and mind is impure, and that affects the whole atmosphere. जी जी। So atmosphere will be affected if we are in pure thinking, we lead a noble life, constantly think of God, we will definitely affect others and change them. जी जी जी। This is a very important thing, real purity and attachment. Getting tuned to God by surrender, prayer, etc. That is one of the best ways of helping others. जी। Yes, next. Next question, Maharaj ji, page 80, second paragraph. Why does the brain revolt in some people the moment he or she tries to sit for some time for devotional readings and serious studies? This is most unfortunate thing. We have not at all a habit of sitting. This has been written by Swami Yatishwarananda. So why does this happen, Maharaj? No, this is because they are not at all. Not only there are many people, you just can't sit. When they sit, as if किसी ने वही उठा के फेंक देगा, बिठा दे, वो उठा देगा. As if someone is even throwing you away. I mean, we have not even developed a habit of sitting quietly without moving. A छोटा बच्चा है, उसको 15 मिनट बैठने के बोलो तो बैठ सकेगा क्या? 15 minutes will be too much for him. वो उठ जाएगा. The moment you sit, make him sit. That moment within 5 minutes he'll get up. He cannot sit. So our minds are like that. Our minds are like child's mind. So it's a sanskar also, na? पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं. पूर्व जन्म क्या? इसी जन्म के पूर्व जन्म मत लाया करो तुम. You are too fond of पूर्व जन्म. अरे स्कूल में बच्चे बैठते हैं ना, स्कूल में तो कॉन्स्टेंटली बच्चे हिलते डुलते रहते हैं ना. कमरे में बड़े भी हो जाते हैं तो भी हिलते डुलते रहते हैं, छटपट करते रहते हैं. हम बचपन से ही छटपट करते रहते हैं. अब वो पूर्व जन्म क्यों लाते हो बाबा? वो हमारा संस्कार ही है, हमारा माइंड ऐसा ही है. The mind of a monkey. Mind of a monkey. Then जी जी. So that mind prompts us also. तो mind जो है वो उसको हमको उठाता है. Will not allow us to sit down.
जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी। थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, can Shreyas and Preyas form the basis when we discriminate on what to consider as duty? Duty क्या है ये समझने के लिए can we use Shreyas and Preyas to discriminate? स्वामी जी ने, यतीश्वरानंद जी ने श्रेयस पेश की ज्यादा बात तो नहीं की है। नहीं महाराज जी, मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में उसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? ड्यूटी को सीधे समझने का प्रयत्न करो। नहीं तो हमको बताना पड़ेगा श्रेयस क्या है, वो बताना पड़ेगा प्रेयस क्या है, और फिर श्रेयस और प्रेयस में हमने जो बताया तो तुम्हारे और प्रश्न उठेंगे। यू आर कॉम्प्लिकेटिंग द होल थिंग। व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट इट? ठीक है महाराज, इसको रहने देते। ना पॉइंट इज के अभी तो श्रेयस नहीं है, प्रेयस ही है। श्रेयस यानी निवृत्ति मार्ग, भगवान के लिए जाना। जी जी जी। प्रेयस यानी संसार के लिए। जी जी जी। तो भाई अभी तो संसार में रहे हो जी, वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हो जी, अर्थ काम और धर्म में लगे हुए हो। मोक्ष का विचार तो आया नहीं है, थोड़ा बहुत भी आया है तो आया है, लेकिन 80% तो हमारा लाइफ और थिंकिंग जो है वो श्रेयसी है, प्रेयसी है। प्रेयस, हाँ। तो प्रेयस कर्म में लगे रहो ना, उसमें क्या नुकसान? ठीक है, ठीक है। Only the duty has to be done with sincerity. स्वधर्म का पालन करो। ठीक है, ठीक है। स्वधर्म का पालन करने में श्रेय से प्रेयस नहीं आता। ठीक है। हाँ, उसको और कॉम्प्लिकेट भाव से जब करोगे तो धीरे धीरे प्रेयस कम होता जाएगा, श्रेयस बढ़ता जाएगा। जी जी। आपका मन जो है उस तरफ जाना। ठीक है महाराज जी, keep it simple। महाराज जी, एक और सवाल है, ये भी चैप्टर से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। कैन सेल्फिशनेस बी डिस्गाइज्ड एज ए सेंस ऑफ ड्यूटी, एंड इफ सो हाउ? ये हमेशा ही होता है। Always we are doing selfishness because and we are telling it is our duty. ये तो हमेशा ही होता है। Everywhere it is there. This is my duty, but my selfish interests are there. I am disguising. सारा आर्टिकल इसी चीज के ऊपर है। जी जी। और आर्टिकल is on this point also. The difference between selfishness and duty is completely gone away in most of the people. जी जी जी, हाँ हाँ। So it is entirely selfishness, और उसी को हटाना है, और उसमें ठाकुर के प्रति जो लव का भाव है उसको इसमें जोड़ के करना है। That is the, ये भी जैसे भी करो, ये पूरा आर्टिकल is explaining the whole thing. That's the whole thing, yes. महाराज जी, एक और सवाल था। In the Chicago fair, Swamiji had to face two situations because of his dress. उनको परेशान किया गया 2 बारी, and other incidents भी हुए थे। ये स्वामी जी के कर्मयोग में उन्होंने लिखा है। This prompts the question that relatively why are Hindus more tolerant to customs and culture compared to the rest of the world? Because the culture है तो इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है। इतने सारे रिलीजन को एक्सेप्ट किया है। सो मैंने हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हिंदुओं में भी जैन है, हिंदू जैन बौद्ध, और हिंदुओं में वैष्णव है, शिव है, शाक्त है। सब अपने आप रहते हैं, तो अपने आप देख टॉलरेंस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन कल्चर। Is it also out of a sense of duty of a householder? No question of duty does not arise. अतिथि देवो भव, इस एक भाव के वजह से भी ना, अतिथि देवो भव इस दूसरी चीज है। अतिथि देवो is a different thing. It is the tolerance in all, in everything. जी जी। Okay. Basic thing is tolerance. Right. And last question, Maharaj ji. Man wants to travel. He wants to read up science, history, geography, etc. So many things. But how does a young aspirant sacrifice all these lower desires
in his duty towards himself, or how does he defy them? No, the question is, ये चीज देखो ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं तो वो ट्रेवल करने के बिना उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके बाद में शांत होती है, और कुछ लोग जो हैं विचार के द्वारा शांत कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं, कोई साधु हैं तो सारा दुनिया घूमा है उन्होंने, और कुछ लोग जो हैं वो 4 धाम भी नहीं गए हैं, अपने आसपास के जो तीर्थ हैं उनको भी नहीं घुमा है। तो ये अपने व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और कुछ नहीं। तो ये तो बहिर्मुखी व्यक्ति है तो वो घूमते हैं, जब तक वो रहेगी तब तक रहेगी। ठाकुर बोलते थे कि छोटी छोटी इच्छाओं को आप विचार और भोग के द्वारा पूर्ण करो, और बड़ी इच्छाएं वासनाएं हैं उसको केवल विचार के द्वारा पूर्ण करो। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो साधक है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। इसी व्याकुलता के ऊपर निर्भर करता है। और यह तीर्थ यात्रा से मेरे को कोई लाभ नहीं होता तो नहीं जाऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और हमारे जो डिसाइपल्स हैं वो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, अरे भाई तुम जरा घूम आओ ना। वो देखते हैं कि ये बैठे नहीं रहने वाला, ये रेस्टलेस आदमी है, उसको कहते हैं चलो घूम आओ तुम थोड़ा सा। और दूसरा होगा कोई क्या करे, क्या करोगे घूम के, जो तीर्थ में वहां पे है भगवान वही तुम्हारे हृदय में ही है, तो सिर्फ उपदेश दे देंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर निर्भर करता है ये। So this depends on the discrimination of the aspirant himself. उसको तय करना है कि उसे क्या चाहिए। यस, उसके ऊपर निर्भर करता है, कुछ नहीं। ठीक है महाराज। महाराज एक सवाल ये है कि आश्रम की ये मिशन की ओर से 1 महीने की छुट्टी क्यों मिलती है हर किसी को? ऐसा कुछ नहीं है कि मिलना चाहिए, हमको तो नहीं मिली कभी, हम तो लेते थे कभी कभी। नहीं, क्योंकि मैंने व्हाट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हर साल 1 महीने की छुट्टी साधु को दी जाती है, टर्न बाय टर्न, एवरी ईयर, एंड दे गो आउट। ऐसा है कि वो अगर मिलती है तो कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। हाँ, जी, और जी। कुछ लोग जो अपने सेंटर को छोड़ के दूसरे छोटे सेंटर में चले जाते हैं, ध्यान जब तपस्या के लिए चले जाते हैं। अच्छा जी। वो जैसा उपयोग करे उसी के ऊपर उपयोग कर सकते हैं। हो गया? जी महाराज जी। शिवानी आर यू देयर? शिवानी, नहीं है, चलो बंद। Shivani ji is not there. ओके, प्रश्न हो गए हैं। एक कुंदू के प्रश्न है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं और समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। राम कृष्णार्पणमस्तु।